آج کل ہمارا انٹرسٹ اور ہماری گورنمنٹ کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ کام بھی کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ اناؤنسمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل ترقی کے ایک نئے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ داخل ہونے جا رہا ہے، جہاں پر 5G ٹیکنالوجی کی آمد ہے، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی ملکی فراہمی اور ہر شہری کو اسمارٹ فون کی آسان اقساط پر دستیابی جیسی پالیسیاں جو ہیں ان کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ کی قیادت میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کو حقیقی بنیادوں پر ڈھالنے کا عزم کیا اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومت 550 میگا ہرٹز اسپیکٹرم نیلام کرنے جا رہی ہے، تاہم 3G 4G مزید اس کو بہتر بنایا جائے گا اور 5G جو ہے وہ متعارف کروایا جا سکے۔ اس حوالے سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے اسمارٹ فون آل پالیسی کے تحت ہر پاکستانی کو اسمارٹ فون کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور ڈیجیٹل سکلز اور دیگر پروگرامز کے ذریعے نوجوانوں کو AI، سائبر سیکیورٹی اور بگ ڈیٹا جیسے جدید شعبوں میں تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے ساتھ بھی مل کر فیلڈ جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے، جو ہے نا وہ لانچ کی جا رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو سائنسی اور ٹیکنیکل علم جو ہے نا وہ دیا جا سکے اور ان کے لیے ایک آپشن موجود ہے کہ اگر وہ ٹک ٹاک استعمال کر بھی رہے ہیں نا تو ٹک ٹاک کے اوپر ایک ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے وہ سیکھ بھی سکتے ہیں جو ان کے اکیڈیمیا کے لیے کام آئیں گی۔ خیر، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام شیزہ فاطمہ خواجہ صاحب سے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ شیزہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بتائیے ڈیجیٹل پاکستان کا خواب جو ہے جو یہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے اپنی جنریشن کو آگے لے کر چلنا ہے اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، بیسیکلی ویژن کیا ہے اس گورنمنٹ کا؟ کہاں پر جا کر رکنا ہے؟ 5 سال کے بعد کا کیا پلان بنایا ہے اس گورنمنٹ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ دونوں کا فار ہیونگ می آن دس شو۔ دیکھیں، جہاں تک تو ڈیجیٹائزیشن کا تعلق ہے اور ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے زندگی کے ہر شعبے میں ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے اور جتنی بھی ایون جو لیگیسی ہمارے شعبے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ہنر جو ہے وہ اپ اسکل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا بڑا ویژن جو وزیر اعظم پاکستان نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنی گورنمنٹ میں ہمارے ذمہ کیا، وہ یہ ہے کہ اس کے 2 میں کہوں گی کہ بنیادی اہداف ہیں۔ ایک ہے ہمارا جو برآمدات ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے تقریباً پچھلے 2 سالوں میں آپ کو بتاؤں تو ہم نے تقریباً $1.5 ارب ایڈ کیا پاکستان کی ایکسپورٹ اکانومی کے اندر۔ آگے بڑھتے ہوئے اسی ریٹ پہ انشاءاللہ اگر ایکسپورٹ گروتھ ہوتی رہی، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 19% کے قریب انڈسٹری جو ہے وہ گرو کی۔ جو ہمارا دوسرا ہدف ہے وہ ہے نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا، اور اس کے لیے ہم نے آتے ہی ایک ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ لیجسلیشن پاس کی، جو کہ ایک میں کہوں گی کہ مائل سٹون ہے پاکستان کی تاریخی ایک لیجسلیشن ہے، جس کے ذریعے ایک ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے اور سب مل کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نادرا کام کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹس NIT بھی اگنائٹ کام کر رہے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کام کر رہی ہے، کہ ہم نے ایک عام شخص کی زندگی کو آسان اور بہتر کیسے بنانا ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور وہاں سے سارا ہمارا پروسیس فلو کرتا ہے کہ ہم نے ان کی ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز کریٹ کرنی ہیں، ہم نے ایسے کرنا ہے کہ قطاروں میں آپ نہ کھڑے ہوں بل پے کرنے کے لیے، اپنی ڈگریز اٹیسٹ کرنے کے لیے، پاسپورٹ لینے کے لیے، آپ ایک کلک آف اے بٹن پہ آپ کے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ آپ کے فون کے اندر ہوں، آپ ایک کلک کریں، تمام اداروں کو آپ کے بالکل ایسے یہ چیزیں آلریڈی ہو رہی ہیں اور پاکستان میں اب جب اس طرف ہم نے قدم بڑھایا تو ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ حوصلہ افزا یہ خبر ہے۔ اچھا شیزہ صاحبہ، یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر سٹیم فیڈ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک طرف ہم جب ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا سٹگما بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جب ٹک ٹاک کے اوپر پڑھائی لکھائی بھی ہوگی اور اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ بچے وہاں سے لرن بھی کر سکتے ہیں جو بیسیکلی ان کے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا، تو یہ بڑا اچھا ہوگا۔ اس کے بارے میں میں چاہوں گی ذرا اس کی تھوڑی ڈیٹیلز آپ بتائیے۔ دیکھیے، میں آج سے جو آپ نے بھی بات کی نا، میں آج سے 2 سال پہلے جب میں SAPM یوتھ افیئرز تھی تو میرا ٹک ٹاک کے ہیڈ آفس دبئی میں جانا ہوا،
वहाँ जाके मैंने इनकी लीडरशिप से बात की, मैंने कहा देखें पाकिस्तान के अंदर जब टिकटॉक की अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी देखें तो ऐसी है कि अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता अनफॉर्चुनेटली आप फिर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखें आपका इतना पावरफुल टूल है मगर पाकिस्तान के अंदर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है, तो एक नेगेटिविटी उसके साथ एसोसिएट हो रही है, तो आप ऐसे क्या इक़दामात ले सकते हैं कि हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से हमारे बच्चे इस्तेमाल करें। वहाँ से ये बात शुरू हुई और अगले 1.5-2 साल ये बातचीत चलते चलते हता कि अभी टिकटॉक ने बहुत ज़्यादा ममालिक में ये लॉन्च नहीं की, लेकिन पाकिस्तान वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ है जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टेम फीड लॉन्च की, जहाँ पे हमारे बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की आप कह लें कि तालीम एक तरीके से बिल्कुल मुफ्त रसाई है। और खाली ये नहीं है, हमारे वो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, हमारे असातिज़ा जो पढ़ाना चाहते हैं, अगर वो अपने चैनल्स बनाते हैं और वो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स इस साइड पे आते हैं, तो आप देखें कि हर शख्स अपनी ज़ुबान में अगर ये पढ़ाना शुरू कर दे तो कोई रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान का बच्चा वो बच्चे जिनको ज़िंदगी में मौका नहीं मिला तालीम हासिल करने का या ड्रॉप आउट हो गए किसी पॉइंट पे, हायर एजुकेशन नहीं ले सके, वो तमाम आजकल आपको पता है दुनिया हुनर की है, स्किल्स की है, जिसके पास स्किल है उसके पास एम्प्लॉयमेंट भी है, उसका कारोबार भी चलता है। तो ये बेहतरीन मौका है कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से एक स्टेम लॉन्च हुआ पाकिस्तान के अंदर। और एक स्टेटिस्टिक जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी और मुझे बड़ी फ़ख्र है अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों पे स्टेटिस्टिक्स का, वो ये है कि जहाँ जहाँ दुनिया में अभी तक स्टेम फीड लॉन्च हुई है पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। पाकिस्तान ये हम एक हमारी परसेप्शन ज़रूर है कि टिकटॉक के साथ नेगेटिविटी की, लेकिन हमारे बच्चे इतने ज़हीन और इतने क्यूरियस हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा इस वक्त कंजम्पशन स्टैम्प बहुत अच्छा हुकूमत का ये इनिशिएटिव है। आपने बात की, मैं इस पे भी सवाल करना चाह रही हूँ, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ रहा है, पॉपुलर भी हो रहा है। इसकी अहमियत को देखते हुए वजारत IT से फ्रीलांसर्स के लिए कोई खुसूसी पॉलिसी या कोई प्लेटफॉर्म इस बारे में बना रही है? थैंक यू सो मच। अब इस हवाले से देखिए जो फ्रीलांसिंग है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 1 साल में हमने 96% ग्रोथ की फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट्स की और हमारे इस साल तकरीबन $780 मिलियन फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स पाकिस्तान में लाए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। 4 बल्कि 5 चीज़ें जो मैं कहूँगी फ्रीलांसर्स के हवाले से जो हुकूमती इक़दामात हैं। पहला तो ये है कि हमने पूरे मुल्क में इंशाल्लाह अभी तक हमारे 50 के करीब ई रोज़गार सेंटर्स बन गए हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन लेके ई रोज़गार सेंटर्स के ऊपर काम करें, और इसी तरह स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क्स तकरीबन कोई 43 के करीब इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारे ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे ये फ्रीलांसर्स बैठ के अच्छी सहूलतें हैं, इंटरनेट है, उस तमाम फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो इनिशिएटिव है वो हमारा है कि डिवाइसेस किस तरह से इंश्योर करनी है। तो एक तो हो गया कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने स्मार्टफोन फॉर ऑल की पॉलिसी का है, वो हम इंशाल्लाह फाइनलाइज कर रहे हैं कि जो स्मार्टफोन्स हैं जिसके ज़रिए आप छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वो हम आसान साथ पे ताकि हर किसी की रसाई स्मार्टफोन तक हो उसको इंश्योर कर रहे हैं। लैपटॉप स्कीम को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वज़ीर-ए-आज़म सबसे वज़ीर आला हैं तब से एक हाई जो हमारे एंड ग्रेजुएट्स हैं मेरिट के ऊपर। इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब आए 2013 से 18 में हमने हर साल 1 लाख लैपटॉप दिए। अब फिर जब हमारी हुकूमत वापस आई तो हम लैपटॉप दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बीच में सिलसिला रुक गया, मगर ओवरऑल हमने अभी तक हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों ने 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख से ज़ायद बच्चों को लैपटॉप्स दिए हैं, जो कि हमें बहुत फ़ख्र है कि जब कोविड आया तो कोविड में भी ये काम आए। आप आज लैपटॉप के बेनिफिशरी से पूछें तो उनके नीचे बहन भाई भी सब वही लैपटॉप्स यूज़ करके तालीम हासिल करते हैं। तो लैपटॉप्स की और डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी। चौथी चीज़ जो ज़रूरी है बताना वो ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बड़ी हमें मुश्किलात हैं, हमारी माशी मुश्किलात थी पिछले साल जब हमने बजट बनाया, लेकिन फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स आज भी टैक्स फ्री ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान का कोई और शोबा, कोई और शख्स टैक्स फ्री ऑपरेट नहीं करता इनकम पे सवाए फ्रीलांसर्स के और रिमोट वर्कर्स। अच्छा शिजा साहिब, आप फ्रीलांसर्स के क्योंकि आप बात कर रही हैं, आखिरी चीज़ जी प्लीज कर दें, कंप्लीट कर दें। 5वीं चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्किलिंग के हवाले से हमारा डिजी स्किल्स का एक प्रोग्राम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पिछले साल उसमें 3 लाख लोग ट्रेन हुए। उसके अलावा हमने फ्री हाई एंड ट्रेनिंग्स
तकरीबन कोई 8,500 लोगों की कराई और 2200 गवर्नमेंट सर्विसेज को AI और टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया। इस साल 3 लाख लोगों की डिजी स्किल्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा शीजा साहिबा, आपने क्योंकि फ्रीलांसर्स की बात की और पाकिस्तान में नो डाउट फ्रीलांसर्स जो है वो बड़ा अच्छा काम कर भी रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो है ना कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मसला जो फ्रीलांसर्स को आता है वो जब पैसे या जो पेमेंट्स उनकी होती हैं वो बाहर से अपने मुल्क में मंगवानी होती हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं जैसे बाकी दुनिया के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके लिए भी क्या वजारत IT काम कर रही है? जी बिल्कुल, हमारी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से बातचीत भी चल रही है। नाम लेना, क्योंकि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं वो पाकिस्तान में खुद भी आएँ और जो हमारे लोकल इस वक्त डिजिटल बैंकिंग है वो बहुत एडवांस्ड है, कुछ बड़े अच्छे इकदाम चल रहे हैं। उनके साथ पार्टनरशिप में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज आएँ ताकि हमारे जो फ्रीलांसर्स को ये पेमेंट की इश्यूज आते हैं वो ना हो, और वो ऐसे पेमेंट गेटवेज जो कि कंपैटिबल हैं बड़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ, और जब वो रिमोट वर्किंग कर रहे हैं तो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ करते हैं, तो उनके साथ जो कंपैटिबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए। तो इंशाल्लाह बातचीत जारी है, जल्द हमारी कोशिश है कि गेटवे जो पाकिस्तान में। अच्छा शिजा साहिबा, अब दुनिया जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रही है, 3G 4G के बाद अब 5G की तरफ दुनिया जो है वो जा रही है। पाकिस्तान में 5G लाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी है वो मैंने हर जगह ये बात बयान की कि पाकिस्तान की कनेक्टिविटी पिछले ये बड़ी अच्छी बात है कि एक साल में 25% इंटरनेट का यूजेज जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ा, और इसमें एक मैं यहाँ पे ऑफ टेंजेंट है लेकिन बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि ख़वातीन का जो मोबाइल इंटरनेट यूजेज है, जेंडर गैप था वो 36% से कम होकर 25% पे आया। तो यानी कि हमारी ख़वातीन भी अब इस दौड़ का बेहतरीन तरीके से हिस्सा बन रही हैं। तो इंटरनेट यूजेज बढ़ता जा रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो 2022 के करीब एक हमें डिफ़ॉल्ट का इशू आया और हमें डॉलर पेमेंट का इशू आया, उस वजह से हम टेलीकॉम का इक्विपमेंट भी इंपोर्ट नहीं कर सके और टेलीकॉम की जो जिस तरह आप टावर्स देखते हैं या आप ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम का, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई। अब हमारी कोशिश ये है कि हम बिल्कुल अपनी जो फाइबराइजेशन पॉलिसी है उसके तहत अपनी राइट ऑफ वे पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, बिजनेस फ्रेंडली बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को फीजिबल बना रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक तो इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो ये है कि फाइबराइजेशन पे भरपूर तरीके से काम हो रहा है, दूसरा है कि स्पेक्ट्रम कितना अवेलेबल है। स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 274 मेगाहर्ट्ज़ है और कोई मेजर स्पेक्ट्रम ऑक्शन पिछले कई सालों, एक जो अगर मैं बड़ा आपको मेजर ऑक्शन कहूँ तो वो मियां नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ, उसके बाद छोटे छोटे 1-2 ऑक्शंस हुए, मगर मेजर ऑक्शन नहीं हुआ। तो आज जो आप 274 मेगाहर्ट्ज़ पे पूरा पाकिस्तान का इंटरनेट ऑपरेट कर रहा है, पिछले 1-1.5 साल में हमने 500 से ज़ायद मेगाहर्ट्ज़ को लिटिगेशन से कुछ को तो फ्री करवाया है। जो लिटिगेशन में मुख्तलिफ मसाइल फंसे हुए थे, और इसमें मैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को बड़ा सराहूंगी। हमें SIFC ने मदद की, हमें अफवाज पाकिस्तान से मदद आई, हमें कोर्ट्स ने मदद की, हमारी गवर्नमेंट ने लीडरशिप ली। आज हमारे पास 550 से ज़ायद मेगाहर्ट्ज़ एक्स्ट्रा अवेलेबल है, जो कि ऑलमोस्ट 2x है जो इस वक्त पाकिस्तान जिस पे ऑपरेट कर रहा है। तो इसकी अब जैसे ही ऑक्शन होगी, और ये ऑक्शन मैं क्लैरिटी से बताऊं कि इससे ना सिर्फ 5G आएगा मगर 4G में बेहतरी आएगी। जो असर हाजिर की जो टेक्नोलॉजी है वो 4G है। आज आप सबके पास 4G के मोबाइल सुनते रहते हैं। एक जो शिकायत अक्सर फ्रीलांसर्स बड़ी शिकायत करते हैं, या अक्सर तो हमने पार्लियामेंट के अंदर भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको शिकायत करते हुए सुना है कि भाई इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा होता है, तो फिर वो वाले मसले तो नहीं होंगे। जी बिल्कुल नहीं। तो ये देखें ना, ये अब देखें ना, इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है कि हमारी ऑक्शन भी नहीं हुई और टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई, मगर यूजेज बढ़ता गया। तो जाहिर है वो फिर उसकी वजह से एक कंजेशन आई हुई है। तो ऑक्शन से ना सिर्फ 3G 4G बेहतर होगा, 5G भी मुतारिफ होगा और आगे बढ़ते हुए चीजें इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल। इन द एंड मैं ये चाहूंगी थोड़ा सा जरा ये बता दीजिए कि राइट नाउ पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स कहाँ पर खड़ी है, क्योंकि मेरे पास जो नंबर आया 2024 से 2025 तक का, वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग $3.8 बिलियन पर, और इसको जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ तो वो $254 बिलियन के ऊपर है। तो एक गैप बहुत बड़ा है अगर हम सिर्फ इस खित्ते की बात करें तो।
उसके साथ कंपेयर तो हम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन इसको हमने बेहतर किस तरह से करना है और एनुअली हमने क्या टारगेट रखा हुआ है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को, IT एक्सपोर्ट्स को कहाँ तक लेकर जाना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी बता दिया। इन द एंड कोई भी आप मैसेज देना चाहें सुनने वालों को? पहले तो मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिटी लेके आऊँ कि हमारा और हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उसका एक्सपोर्ट मेजर करने का मयार बिल्कुल फ़र्क है। हमारा मयार एक्सपोर्ट का ये है वो डॉलर जो हमारी कंपनी जो सर्विस देती है, वो डॉलर जो वो पाकिस्तान लेके आती है। सो आप इमेजिन करें कि अगर किसी ने $1000 का प्रोजेक्ट उठाया है और वो उसमें से $700 पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, तो हम बैंकिंग चैनल को सिर्फ देखते हैं कि $700 का एक्सपोर्ट हुआ, हम $1000 नहीं कैलकुलेट करते। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स की मेजरमेंट है वो $1000 शो करेगी। तो एक तो बुनियादी फ़र्क कैलकुलेशन में है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि उसके बावजूद फ़र्क डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। हमारे कुछ चैलेंजेस रहे माजी में, लेकिन अब आप देखें कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मैं सिर्फ एक क्योंकि आपने ये पॉइंट छेड़ा, तो मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगी कि अभी जो मई में एक इशू क्रिएट हुआ और एक जंग लड़ी हमने भारत के ख़िलाफ़, उसके अंदर एक वो खाली कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं थी। एक तरफ तो हमने उनके तैयारे गिराए और एक कामयाबी हासिल की, मगर दूसरी तरफ वो 360 डिग्री वॉरफेयर थी जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ और हर सतह के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी दिखाई और दुनिया में अपना नाम मनवाया। आज ऐसे ही नहीं है कि हर मुल्क जो है वो आपको मिलने आ रहा है, फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको लोग मिल रहे हैं, वज़ीर आज़म को मिल रहे हैं, हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को आप देखें, आप डिफेंस मिनिस्टर को देखें, हर तरफ से लोग जो हैं पाकिस्तान ने एक नाम कमाया है। अभी ईरान के सदर आए हुए थे, आप देख लें कि US में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हमारे क्या ताल्लुक चल रहे हैं, इसी तरह चीन में भी हमारे बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं, सऊदी अरब में, UAE में। तो ये एक आप कह लें कि एक एक्सेप्टेंस, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, और इसी की बुनियाद पे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपना हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो भी इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है अपनी जो हमारी 15 करोड़ से ज़ायद हमारी नौजवान एक पॉपुलेशन है, उसको हम यहाँ से हम इनेबलमेंट करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से वो इंशाल्लाह पाकिस्तान कोई पैगाम भी दे दीजिए नौजवान नस्ल की जिनकी आप बात करें, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आज के दौर में एक शख्स कोई भी हमारे में से किसी भी सोशल स्ट्रेटा से ताल्लुक़ रखता हो, कोई बंदिश नहीं है। आज टेक्नोलॉजी मौजूद है, आज प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप सीखें, आप टेक्नोलॉजी के स्किल्स लें। आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तमाम जो आपकी लेबर की पूरी लैंडस्केप है, एम्प्लॉयमेंट की लैंडस्केप बदल देनी है। अपने आप को फ्यूचर रेडी करें, आप फ्यूचर रेडी होंगे तो पाकिस्तान फ्यूचर रेडी होगा। टेक्निकल स्किल्स लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना सीखें। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ, मुहिब्बुल वतनी के साथ चलते हुए टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव यूज़ करें टेक्नोलॉजी का। इंसान के हाथ में जब एक ताकत आती है टेक्नोलॉजी जैसी, तो इंसान की अपने फैसले होते हैं कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है। आपको जो दिन में 24 घंटे मिलते हैं उनमें से वक्त जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, कुछ सीखें और सिखाएं। बिल्कुल प्रोडक्टिव इस्तेमाल पहुंच गया होगा आपका और समझ भी गए होंगे जिनको आप मैसेज देना चाह रही हैं। बहुत शुक्रिया। शिजा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थी, वफाकी वज़ीर। बहुत ही अच्छी खबरें उन्होंने सुनाई है। पाकिस्तान में IT और टेक्नोलॉजी जो है ना उसका मुस्तकबिल हमें रोशन नज़र आ रहा है और हम उसके बदले में ये कह सकते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल का फ्यूचर जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा रोशन नज़र आ रहा है।